پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں لاہور سے عتیق ملک. ناظرین, اشیاء خوردنوش کی معیاری اور سستی خرید جو ہے وہ ایک عام شہری کے لیے ایک ٹاسک بن چکی ہے. لہسن, پیاز, ادرک یا ٹماٹر اور جو دیگر اشیاء ہوتی ہیں تو ان کے ریٹ عید الاضحیٰ کے قریب اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ عام شہری کے لیے جو ہے وہ خریدنا ایک مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ دکانداروں سے اس حوالے سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ریٹ کے پیچھے اضافے کی وجہ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ بتاتے ہیں. لیکن ہم اس وقت موجود ہیں سبزی منڈی میں اور جا کر ہم تاجروں سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہ ان کی ریٹ بڑھانے کے پیچھے صرف اور صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ ہے یا اور بھی وجوہات ہیں جس کے باعث ان کے ریٹ جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کے ایام میں بڑھا دیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اس یونین کے عہدیداروں سے بھی اور صارفین سے بھی کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں سبزی منڈی میں اور یہاں پر ٹماٹر, ادرک, ہری مرچ, لہسن اور دیگر جو سامان ہوتا ہے سبزی کا اور فروٹ کا وہ وہاں پر بیچا جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ تاجر برادری بھی موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عید الاضحیٰ سے قبل اور عید الاضحیٰ کے بعد جو ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے جو محرکات کیا ہیں, وہ ساری باتیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ چلیے گا. عید سے پہلے اور عید کے بعد یہ جو سبزیاں ہوتی ہیں اور جو خاص طور پر ٹماٹر, ادرک, لہسن یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عید پر ہر گھر میں گوشت پکنا ہے, عام دنوں میں نہیں پکنا ہے. اور گوشت آپ کو پتا ہے, ادرک, لہسن, ٹماٹر, مرچیں, یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ویسے عام روٹین پہ بھی کھانا بنائے تو اس میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. کم ہوتی ہیں جتنی اس عید پہ, بکر عید پہ ہوتی ہیں نا. ہر گھر میں گوشت جاتا ہے. عام روٹین میں ہر آدمی گھر میں گوشت نہیں پکاتا اور گوشت میں یہ چیزیں لازمی ہیں جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اور سپلائی اگر تھوڑی سی بھی کم, ادرک ہماری اپنی پروڈکٹ ہی نہیں ہے, پاکستان میں تیار ہی نہیں ہوتا, ہمیں چائنا سے امپورٹ کرنا ہے. کوئی شپ بھی اگر تھوڑا ڈیلے ہو گیا, وہ نہیں لگا اوپر پورٹ پر, تو وہ جو ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی, سپلائی کم ہوگی, وہ آلریڈی ریٹ اوپر چلا جائے گا. آج سے 20-25 دن پہلے ٹماٹر 10 روپے, 15 روپے, 20 روپے سے زیادہ نہیں تھا ریٹ. وجہ کیا تھی کہ ہمارے لوکل ٹماٹر تھے پورے پنجاب کے, ہر ایریا میں ٹماٹر تھا, کوئی ٹماٹر کی ضرورت نہیں تھی. ابھی پورے پنجاب میں ٹماٹر نہیں ہے اور ٹماٹر آ رہا ہے کوئٹہ سے یا وانا سے. پنجاب میں ٹماٹر نہ ہونے کی وجہ کیا؟ وہ یہ قدرتی نظام ہے, یہ موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے. ابھی یہ موسم نہیں ہے, ٹماٹر کی جو فصل ہونی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ابھی یہ کوئٹہ آئے گا. کوئٹہ میں موسم ٹمپریچر تھوڑا کم ہے, ادھر ٹمپریچر زیادہ ہونے سے فصل تیار نہیں ہوتی. تو ابھی کوئٹہ سے آ رہی ہیں 25 سے 30 گاڑیاں اور ڈیمانڈ ہماری ہے 50 گاڑیوں کی, 60 گاڑیوں کی. تو جس وجہ سے تھوڑا ٹماٹر کا ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں. یہ ابھی یہ عید گزری ہے, یہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. ٹرانسپورٹیشن کا اخراجات زیادہ ہیں, جو ٹرکوں کے کرائے ہیں. ابھی کوئٹہ سے ادھر تک تقریباً 1 لاکھ روپیہ تو اس کا کرایہ ہوگا, 10 ٹن اس میں مال ہے. تو آپ اس کا اندازہ کریں کہ 10 روپے کے جی کے حساب سے تو اس کے اوپر کرایہ آ جائے گا. یہ ساری چیزیں پھر ادھر سے جس دکاندار نے لینا ہے ادھر سے اس نے بھی لے کر جانا ہے. ایک 50 کلو چیز 40 کلو مارکیٹ سے اٹھا کے صرف باہر روڈ تک لے جانے کا لیبر جو ہے 100 روپے ہے. 2 روپے پر کے جی کی سمجھ لیں وہ لیبر آ گئی. آگے جس چیز میں لے کر جانا ہے اس نے اس کے علیحدہ چارجز ہوں گے, رکشے میں لے جاتا ہے, ویگن میں لے جاتا ہے, کسی چیز میں لے جاتا ہے. پھر وہ جو اپنی دکان اس نے لازمی نہیں اس کی اپنی اور رینٹ کی ہوگی, اور رینٹ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا, اس نے ملازم رکھے, وہ ساری چیزیں بیچ میں آئیں گی. وہ جو 20 روپے والی چیز ہے نا وہ جاتے جاتے 35 روپے میں ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ذمہ دار کو اس کا مارجن نہیں مل رہا اور آگے جو ہے عوام تک سستا نہیں مل رہا. یہ جو درمیان میں یہ چیزیں ہیں نا, یہ ہم کوئی بھی لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. وہ تو چلے درمیان کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے یا جو دکاندار ہے اس کو پتا ہوتا ہے, لیکن جو ریٹ لسٹ دی جاتی ہے ہمیں اس پہ لکھا گیا ہے جی 50 روپے کلو ٹماٹر ملیں گے, لیکن وہ ٹماٹر جو ہے وہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ریٹ لسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ 70 سے اوپر ریٹ لسٹ نہیں گئی. یار یہ مقصد ہے کہ سراسر زیادتی ہے. جو مارکیٹ آکشن ہو رہی ہے آپ اس کو ریٹ لسٹ میں دیں, کیوں نہیں دے رہے؟ صرف اعلیٰ انتظامیہ کو بتانے کے لیے ریٹ لسٹ بناتے ہی نہیں ہے معیار کے. اگر 30 چیزوں کی ریٹ لسٹ ہے نا, آپ کو 29 چیزیں بھی ریٹ پر نہیں ملیں گی. وہ ایک چیز بھی نہیں ملے گی, ایک چیز بھی بہت مشکل ہے, ہو سکتا ہے مل جائے نا. ریٹ لسٹ ٹوٹل جو ہے اپنے ایسٹیمیٹ سے بنا دیتے ہیں. 10 سال سے اس پر چیخ کے تھک گئے ہیں کہ یار یہ ریٹ لسٹ کو ختم ہی کر دو. ریٹ لسٹ ڈی سی آفس کی جانب سے واضح کی جاتی ہے نا, اکثر جب کاروائی کی جاتی ہے تو دکانداری اس کے زد میں آتے ہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں, وہ بیچارے نے پورے دن میں 2000 یا 1500 کمانا نہیں ہے, اس کو 5000 فائن کر دیں گے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے.
ये नहीं होनी चाहिए, आप इसको खत्म कर दें। अवाम भी कहती है, आप भी कहते हैं कि हमें रेट लिस्ट पर नहीं मिल रहा जी, आप समझ रहे हैं कि वो चोर है, वो दुकानदार ज्यादती कर रहा है, हालांकि उससे ज्यादती हो रही है। अगर रेट कम या ज्यादा हो तो डीसी ऑफिस की जानिब से जो इंतजामिया होती है वो इस पे कोई असरअंदाज करती है, यानी कोई एक्शन लेती है? एक्शन तो लेते हैं, उनके मजिस्ट्रेट आते हैं, मार्केटों में भी आते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो हमारा उनसे यही बात होती है कि खुदा के लिए रेट लिस्ट एक्चुअल दें, जो रेट एक्चुअल बन रहे हैं, जिसमें जो गरीब, ये जो तबका है ना, ये फड़िया लोगों का, ये जो माल आड़तियों से लेके बेचते हैं, ये बेचारे डेली बेसिस पर जो कमाते हैं ना, उन्हीं से इनका चूल्हा जलता है, जो इन्होंने कमाना है। और ये इतने बड़े स्टॉकिस्ट नहीं है, और ना ही सब्जियों में कोई ऐसी चीज है स्वाए ये प्याज के या आलू कोल्ड स्टोर में स्टोर हो जाते हैं, कोई चीज उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है कि आप उसे स्टॉक कर लें और उसको महंगे दामों बाद में बेच लें। इन पर कभी आज तक गवर्नमेंट ने ख्याल नहीं किया। प्राइस कंट्रोल के चेयरमैन बना दिए, फलाने, वो सब कुर्सियों पे बैठे हैं, पूरा रात ये सब्जियां बिकती हैं, कौन इतनी ड्यूटी करे सुबह से लेकर शाम तक? नहीं, जाहिर सी बात है, अमला तो उनका अमला है ना, तो ड्यूटी नहीं कर रहा, बस टाइम पास किया, चले गए, हाँ भाई क्या रेट कितने का बिका है। दूसरी जो चीजें होती हैं, प्याज है, लहसुन है, मिर्चें हैं, उसके रेट भी उसमें इजाफा हो गया है, उसकी वजह भी क्या है? असल में बात यह है, जो हमारे पंजाब की जब सब्जी आती है ना, वो इतनी मंदी से बाद का जमींदार को किराया भी वापस लेकर नहीं जाता। जब दूर दराज इलाकों की आती है सब्जी, जब ये अभी मटर जो है ये आ रहा है स्वाद से, आगे नरान कगान से आ रहा है, ठंडे इलाके से आता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी तो बहुत ज्यादा है, उसके सस्पेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका रेट ज्यादा है। गोभी है वो ठंडे इलाकों दूर दराज पंजाब की खत्म हो गई। जब पंजाब की गोभी आती है तो वो 5 रुपए 10 रुपए किलो बिकती है। जैसे जैसे अब कराची जो सौदा आएगा या कोयटा से आएगा, अब बंद गोभी कोयटा से आ रही है, उजहरी के लिए कोयटा के अखराजात पड़ेंगे, खीरा उधर से आ रहा है, काबल से आ रहा है। जो चीज दूर दराज इलाके से आएगी उस पर ट्रांसपोर्टेशन आएगी, तब जब ट्रांसपोर्टेशन आएगी उस पर सस्पेंस बढ़ जाएंगे, जब सस्पेंस बढ़ जाएंगे जाहिर भी ऑटोमेटिक रेट ज्यादा होगा। धनिया और मिर्चें और अदरक जो चीजें बेची जाती हैं, मतलब हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, ईद के आते ही वो बड़ी महंगी हो जाती हैं, वो क्यों होती है? मंडी में मांग बढ़ जाती है, खाने वाले बहुत ज्यादा, सब्जी बहुत कम आती है, इससे महंगी हो जाती है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, डिमांड एंड सप्लाई का तो जो इशू है, ये इतनी गंदगी कीचड़ है जिसके, और इस कीचड़ के बावजूद यहाँ पर लोग ठेले लगाकर बेच रहे हैं, मुश्किल नहीं है? सफाई नहीं करती गवर्नमेंट, बहुत गंदगी है। बारिश जब होती है तो इसी तरह की सूरत हाल होती है? हाँ जी, इसी तरह बहुत पानी, गंदा हाल, बुरे हाल, बंके दिहाड़े। ये धनिया जो बेचा जा रहा है, आमतौर पर ये होता था कि जब हम घरों में सब्जियां लेने जाते थे तो ये दुकानदार हमें फ्री में डाल के दे देता था। उससे आल दे मौसम से, सर्दी से, गर्मी में महंगा होता है। गर्मियों में ये धनिया जो है वो महंगा हो जाता है, उसकी क्या वजह? गर्मी में इसकी पैदावार कम होती है ना, गर्मी से ये धनिया आ कहाँ से रहा है? पेशावर, सवात मर्दान से, कोटे से। गर्मियों में और सर्दियों में जो पैदावार है वो यहाँ पंजाब में ही होती है। कि ये लीमू कहाँ से आ रहा है? ये हैदराबाद से आया है। हैदराबाद से। वैसे मौसमी लीमन जो पंजाब में पैदा होता है वो किस मौसम में? वो अगले माह में आएगा, यानी कि अगस्त में लीमू जो है पंजाब में पैदा होना शुरू। हाँ जी, हाँ जी। अभी इसका रेट जो है वो कितना है? अभी अच्छे वाले जो अव्वल है उसका रेट है 120-100। तो जब पंजाब में इसकी पैदावार शुरू हो जाएगी तब इसका रेट क्या होगा? 30 रुपए किलो, 50 से 30 से लेकर 50 रुपए किलो तक रहता है। पंजाब की जो प्रोडक्शन होती है अगर उसकी स्टोरेज कर ली जाए तो जो बाहर से जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं या बाकी चीजें वो कम नहीं होंगे? सर अगर स्टोरेज कर ली जाए तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा, तो इसमें रेट्स में भी जो है कमी आ जाएगी। अभी आप देख लें, खीरा जो है मेरा ख्याल है वो कोई 70 रुपए किलो खीरा दे रहे हैं, टमाटर भी है वो भी मेरा ख्याल है 70-80 रुपए है, और करेले वैसे मेरा ख्याल है वो 50-60 रुपए किलो। इन सब का रेट एक जैसा है, और ऐसे जैसे पता नहीं महंगाई का तूफान आ गया है। हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है, तो हम ये सोचते नहीं है। हमारे जो इधर ताजर हैं उनको सोचना चाहिए, जो गवर्नमेंट की लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक इनको चलना चाहिए। बिजली इंतजामिया है, अगर वो थोड़ा सा अपने काम में बेहतरी लाए तो मुमकिन है कि ये जो मसाइल हैं, जो आवाम तक महंगी सब्जियां जो है पहुंच रही हैं, उस वो मसाइल जो है वो हल होकर आवाम तक जो है वो ना सिर्फ बेहतर बल्कि कम कीमत में जो है वो सब्जियां मिल सकती हैं। यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ ये मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ आल पाकिस्तान वेजिटेबल एंड फूड मार्केट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सदाम साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, शुक्रिया जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ईद उल अज़हा करीब आती है तो जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चियाँ और जो दीगर सामान होता है जो खाने में इस्तेमाल होता है उसके रेट बड़े बढ़ जाते हैं। इसकी मेन वजह क्या है वैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी ना डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, और ये जो वेजिटेबल्स से रिलेटेड जो मसाला जात हैं जिसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, लीमू, हरी मिर्चें, ये चीजें आती हैं, इनकी बेसिकली मांग में इजाफा हो जाता है। जब इसकी जो सप्लाई है वो अपनी रूटीन के मुताबिक चलती है, या समझ लें आप कि 10 to 30% उसमें इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो 300% हो जाती है, जो 100% डिमांड नॉर्मल रूटीन में चलती है। तो जब उसकी डिमांड में इतना ज्यादा इजाफा होगा और 130% उसमें हमारी जो है उसकी रसद होगी, तो तलब उसकी 300% होगी, तो जाहिर सी बात है वो पूरा करना नामुमकिन होगा। तो फिर उसकी जो कीमत है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ये सबसे मेन फैक्टर इसका ये है। आम दुकानों पे जो बेचने वाले होते हैं उन्होंने भी रेट बड़े बढ़ाए होते हैं। देखिए, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मार्केट कमेटी लाहौर और जिले इंतजामिया उनकी तरफ से एक रेट लिस्ट शाया होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि सारिफ को ये चाहिए कि रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो जो भी मसनूआत उसने खरीदनी है वो रेट लिस्ट के मुताबिक खरीदे। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कह ले कि लाहौर में कह ले, ये उल्टी गंगा बहती है। ये रेट लिस्ट के मुताबिक कोई आइटम उनको नहीं मिल सकती। ये सारी सिर्फ बात ये है कि 2 नंबर तरीके से रेट लिस्ट बनाई जाती है। ये सारी मेन इशू है। रेट लिस्ट अच्छी हो तो फिर जाहिर सी बात है कि वो नॉर्मल, ना किसी जो खरीदार है ग्राहक जो होगा ना उसको कोई प्रॉब्लम होगी, ना बेचने वाले को कोई होगी, और ना किसी आरती को कोई मसला होगा। ये बेसिकली मन मानने जो है ना वो ब्लैक मेल किया जाता है। जो रेडी बान है, जो छोटी दुकानदार है, वो जो है ब्लैक मेलिंग की जाती है और वो मन चाहे दामों वो फरोख्त करते हैं। क्या ऐसा भी मुमकिन होता है कि इस मंडी में दूसरे शहरों से भी कुछ चीजें मंगवाई जाती है ताकि जो चीजें आपकी जरूरत होती है उसको पूरा किया जा सके? जनाब, ऐसा है कि दूसरे शहरों की जो बात है, तमाम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दूसरे शहरों से ही आता है। बेसिकली ये फसल का हिसाब होता है। जब लाहौर की फसल होती है टमाटर की, वो मुश्किल 1 महीना यहाँ पे रहती है, बकाया 11 महीने दूसरे जिला से आया जाता है। जब लाहौर की फसल होती है 1 महीना आलू की फसल है, बाकी 11 महीने जो है दूसरे जिला से आते हैं। लाहौर के किनारे जो है, अगर लाहौर शहर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं उसका एक सीजन होता है। 12 महीने कोई भी चीज लाहौर शहर या पंजाब की नहीं है, दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से और दूसरे मुल्कों से भी मंगवाया जाता है। हर चीज तो जाहिर सी बात है दूसरे शहरों से लाहौर आती है, उसकी डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें जो है वो लाहौर में मंगवाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जरूरत नहीं पूरी होती, खासतौर पर जब ईद उल अज़हा के दिन करीब आते हैं या जब मौसम जो है वो उसके बेमौसमी जो चीजें जाती हैं उसमें रेट बड़ा फर्क आ जाता है मार्केट का और जो मंडी है उसका। जब इसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है और सप्लाई जो है मतवक्कर जो है अपने जो है जिस तरह रूटीन के मुताबिक चल रही है, तो जाहिर सी बात है उस चीज का आएगा। लाहौर की मंडी को अगर आप इसका मतवाजन अगर करें तो यहाँ पे बेसिकली भत्ता माफिया है। जो यहाँ पे बहुत सारे अखराजात है, जो एक गरीब मजदूर यहाँ पे मजदूरी करता है, जो एक फड़िया यहाँ पे फर लगाता है, उससे भत्ता वसूल किया जाता है। कुछ बदमाश अनासर हैं यहाँ पे और जो बाअसर लोग हैं वो यहाँ से भत्ता इकट्ठा करते हैं, और यहाँ तक कि मंडी में एक बंदा गुजरने की भी जगह नहीं होती है। और यहाँ पे वो जब भत्ता इकट्ठा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उसने अपने घर से लाकर तो नहीं भत्ता देना ना, उसी माल से देना है। माल महंगा करके बेचेगा। जब माल महंगा करके बेचेगा तो वो जो है वो पैसे आम सारिफ के ऊपर आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो चीज महंगी होने का एक रीजन ये भी है। अच्छा, दूसरी एक जो अहम वजह जो आपने भी पॉइंट आउट की है कि रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें नहीं मिलती। अच्छा, जो रेट लिस्ट बनती है, क्या जो डीसी ऑफिस है या जो बनाने वाली है रेट लिस्ट, आपसे इस हवाले से कोई बातचीत करते हैं? जो मिल बैठ के कोई रेट लिस्ट निकाली जाती है या अपनी मर्जी से वो निकालते हैं? जब रेट लिस्ट निकालना स्टार्ट किया था तब सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट पे ही
کہ یہ ایک بمشکل 1 مہینہ یہاں پہ ریہرسل ہو سکی, لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ اپنی منمانی جو ہے وہ قیمتیں لگا کے اور اپنے منمانی چاہے ریٹس لگا کے اس کی ریٹ لسٹ تیاری کی جاتی ہے, اور آج تک وہی طریقہ کار ہے. ابھی کوئی ان کی مل بیٹھ کے کوئی بیٹھک نہیں ہوتی ہے, وہ صرف گھر بیٹھے ہی سکون سے جو ہے نا وہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور وہ جناب ریٹ لسٹ تیار ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کے ساتھ مل کے کوئی چیز طے نہیں ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے زمینی اکائی کے مطابق تو چیز ریٹ میں ملے گی نہیں. اس کا یہی یہاں پہ مسائلستان ہے اور اس چیز کا یہاں پہ فقدان پیدا ہوا ہے. آپ نے سبزی منڈی کی حالت دیکھی ہے, اور یہ آپ اگر کچھ دن پہلے آتے تو یہ دریائے سبزی منڈی کا منظر پیش کر رہی تھی. بارشیں ہوتی ہیں اس دوران, ایک بارش ہو جائے یہاں پہ چند گھنٹوں کی, یہاں پہ 4-4 فٹ تک پانی یہاں پہ کھڑا رہتا ہے. یہاں پہ جو روزگار ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, یہاں پہ مزدوروں کا روزگار مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو کروڑوں روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں, آرتی جس کو بولا جاتا ہے, جو تاجر برادری ہے وہ یہاں پہ منڈی میں اپنی دکانوں پہ نہیں آ سکتی. یہاں پہ تمام روڈ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں, بارشوں کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, نکاسی آب کا نظام جو ہے وہ درہم سے برہم ہو جاتا ہے. یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں, آپ کے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. یہاں پہ گائیں, بھینسیں, کتے, بلیاں یہاں پہ موجود ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں سبزی اور فروٹ منڈی کم, یہ مویشی منڈی زیادہ لگ رہی ہے. جو ریٹ نکالا جاتا ہے اس ریٹ کے مطابق چیزیں نہیں بکتی یا نہیں ملتی گاہک کو. اب ٹماٹر کا جو ریٹ آج نکلا وہ 52 روپے یعنی 52 روپیز جو ہے وہ ٹماٹر کا ریٹ ہے, لیکن مارکیٹ میں تقریباً 100 روپے فی کلو جو نکل ہے مل رہے ہیں لوگوں کو. مرچوں کا ریٹ اسی طرح دھنیا, ادرک, لہسن, وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, اس پہ کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس پہ کنٹرول سب سے پہلے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح پیچھے مجسٹریٹس کو انہوں نے اختیارات جو ہے وہ سرکاری مجسٹریٹس کے پاس ہیں, اور مجسٹریٹس کی تعداد بڑھائی جائے, اور جو بندہ مہنگے داموں کوئی بھی مصنوعات کوئی فروخت کرتا ہے اس کو بھاری فائن کیا جائے, اس کے اوپر FIR دی جائے, اور ریٹ لسٹ سب سے مین جو چیز ہے نا وہ کریکٹ بنائی جائے. صرف اپنے شہنشاہوں اور اپنے بادشاہوں کو صرف نوازنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے فیک ریٹ لسٹ نہ بنائی جائے, جو ایکوریٹ ریٹ ہے. جس طرح آپ نے ٹماٹر کی بات کی, 52 روپیز جو ہے 52 روپے کلو ٹماٹر کا ریٹ اس کے اوپر آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوک ریٹ پہ 70 روپے کلو تو وہاں پہ بک گیا, اور آپ مجھے یہ بتائیں وہ 70 روپے کلو لے کے 52 روپے کلو کیسے بیچے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے, اگر 70 روپے بکا ہے اس کے جو لوازمات ہے, جو اخراجات ڈال کے اگر 76 روپے کلو کا ریٹ اگر بنتا ہے تو 76 روپے کلو ریٹ دیں. یہ غلطی نہ کریں کہ وہ آپ 52 روپے کلو دے رہے ہیں ریٹ. ظاہر سی بات ہے ریٹ اگر دے بھی دیتے ہیں لسٹ پہ اوپر, تو جب ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں بکنی نہیں تو فائدہ کیا اس ریٹ لسٹ کا؟ اس کا فائدہ تو وہ بیکار کاغذ ہی ہوگا نا. دیکھیں نا جناب, بات یہ ہے کہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ فیک ریٹ لسٹ تو بنانی ان کو پڑتی ہے نا. وہ یہ ہے کہ فیک ریٹ لسٹ نہ بنائے, ایکوریٹ ریٹ لسٹ بنائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عام صارف جو ہے وہ بھی یہ دھوکہ دہی سے بچ جائے گا, اور بیچنے والا بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ گناہگار نہیں ہوگا. آج بھی اس کی ٹیم کی توسط سے میں یہ چیز کام بالا تک پہنچانا چاہوں گا کہ خدارا یہ ریٹ لسٹ کا نظام جو ہے اس سے بہتر کیا جائے. یہاں پہ جو قبضہ مافیا ہے, یہاں پہ جو بھتہ خوری ہے اس کا بالکل صفایا کیا جائے. یہاں پہ جو نظام ہے نکاسی آب کا جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے, تاکہ عام صارف کے گھر میں سستی اور معیاری اشیاء ان کے گھروں پہ پہنچنی چاہیے. گٹروں والے پانی سے دھلی ہوئی سبزیات نہیں پہنچنی چاہیے جو ہیپیٹائٹس اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. یہ لیکن یہاں پہ سبزیات آپ نے دیکھی ہیں, گندے پانی سے بہتی ہوئی سبزیات یہاں پہ فروخت کی جاتی ہیں, جو لاہور کے باسیوں کے گھروں میں اور حکام بالا کے گھروں میں بھی وہی سبزی جاتی ہے. جی بالکل جی, گفتگو کا سلسلہ بھی ابھی جاری ہے. یہاں پر وقت ہے چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم شہریوں کے تاثرات جاننے کے لیے ایک منڈی میں موجود ہے, اور ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. اچھا آئی صاحب, جب عید قریب آتی ہے تو سبزیوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, کبھی آپ نے جاننے کی وجہ کوشش کی ہے؟ عید جو ہوتی ہے, یہ عید ہوتی ہے اس لیے, ہاں اس وجہ سے مہنگی ہو جاتی ہے. عام دنوں میں کچھ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں
और चंद ही दिन में जब ईद आती है तो रेट डबल हो जाते हैं। बिल्कुल 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 डबल हो जाता है, ऐसा ही होता है ऐसा। तो क्या वजह है कि सिर्फ लोगों की जो जरूरत बढ़ जाती है इसकी वजह से रेट बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है क्योंकि हर आदमी की ज्यादा जरूरत होती है पहले से, तो इसलिए रेट बढ़ जाते हैं। कोई और वजह आपको लगती है कि इसके पीछे कोई और वजह भी होगी? वजह बस यही होती है, मैं अपना मुनाफाखोरी की, और क्या वजह हो सकती है। बड़ी रेट बढ़ जाते हैं एकदम चीजों के। चीज ज्यादा कम आती है ना तो रेट ज्यादा हो जाते हैं। कोई भी चीज है हर ईद पे ना ऐसे ही हो जाता है। पिछली मरतबा 200 रुपए किलो टमाटर थे 300, तो इस मरतबा फिर भी थोड़ा सा कम रहा है। स्टोरां च माल जमा हो जाता है ब्लैक, वो फिर थोड़ा थोड़ा कट के बेचते ने, वो चीज महंगी हो जाती है। अदरक होया, थोम होया, टमाटर हो गए, ਉਹਦੀ वजह तो फिर अच्छा, जो रेट लिस्ट जो डीसी ऑफिस की जानिब से शाया होती है, क्या कभी उस रेट के मुताबिक चीजें मिली हैं? असल वो रेट में कभी भी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलता, ये खुद पता ही नहीं करते कि रेट क्या है। हल्की चीज का रेट दे देते, अच्छी का देते नहीं है, ये फर्क आ जाता है। या बाज़ को अच्छी चीज का रेट दे देते हैं और जो निचले लेवल की जो चीज होती है होली, हाँ, रेट नहीं है, क्या फर्क है। रेट क्या बढ़ने हैं, ये लोग खुद ही रेट बढ़ा देते हैं। हाँ, इसमें से यही है कि भाई ये एक चीज अगर 70 रुपए की है तो 120 रुपए में देते हैं, ठीक है। इतना होलसेल की 170 में, 170 रुपए में एक चीज है, यानी कि मैं अदरक है, अदरक अगर 300 रुपए किलो है तो ये 400 450 रुपए किलो दे रहे हैं। तो जब आम मार्केटों में जाती है तब रेट और बढ़ जाता है। और रेट बढ़ा, क्योंकि इससे ज्यादा मुनाफाखोरी होती है। तो वैसे जो आम आदमी जब चीजें वो लेने जाता है तो उनको मुश्किल होती है। मुश्किल तो होती है, मुश्किल क्यों नहीं होनी है। अगर एक चीज अगर एक किसी आदमी के अगर जेब में पैसे नहीं है, अगर टमाटर है 200 रुपए किलो है, आप घर से 100 रुपए लेके आए हो, 100 रुपए में मैं किलो ले लूंगा या आधा किलो ले लूंगा, इससे गुजारा तो नहीं ना होगा। यही है कि भाई मसलन को थोड़ा सस्ता होना चाहिए। नहीं, सस्ता तो जाहिर सी बात है, मार्केट के जो लोग हैं उन्होंने रेट अपना बनाया हुआ है और उन्होंने रेट निकाला है। डीसी ऑफिस का तो यहाँ पे कुछ चक्कर ही नहीं। डीसी ऑफिस का तो है ही नहीं, वो रेट लिस्ट वाले हैं, उन्होंने सिर्फ अपने लिए पैसे बनाए हुए हैं कि 10 रुपए की पर्ची देते हैं, अगर जो नहीं लेता तो उसको कहते हैं कि डीसी ऑफिस, वो पैसे बना के वो हर रेडी वाले कम से कम 10 लाख से ऊपर रेडी है लाहौर में, 10 लाख वो रेट लिस्ट जाती है। 10 लाख के वो आप पैसे लगा लें कि वो कितना पैसा बनता है, सिर्फ पैसे बटोर रहे हैं। पैसे बटोर रहे हैं और कोई चक्कर नहीं है। रेट लिस्ट कोई डीसी ऑफिस कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पे कि किसी से कोई रेट लिस्ट पे कोई आता ही नहीं है। वो जो है लिस्ट दे रहे हैं, मंडी वाले लिस्ट ले लो। लिस्ट में अगर टमाटर 50 रुपए किलो होंगे ना, तो आम जब आप दुकान पे जाएंगे तो वो 120, 130, 140 रुपए मिलते हैं। वो कैसे देगा जब उसने महंगे लिए हुए हैं? वो 180 रुपए में तो उसने खुद खरीदे हुए हैं, वो 70 रुपए में कैसे देगा? बिल्कुल जी, यहाँ पर मसाइल तो बहुत से हैं, हमारे पास कुछ और भी शहरी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे जब सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं आम दिनों में, जब खासतौर पर जब ईद उल अज़हा करीब आती है, तो शहरियों के लिए मुश्किल होता है चीजें खरीदना? मुश्किल तो होता है, लेकिन बात यह है ना कि रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, को टाइम बिकता है, फसल पीछे से खराब हो जाए फिर वो फसल कम हो जाती है, फिर उसका रेट बढ़ जाता है। जब फसल ज्यादा हो तो फिर तो रेट इसका आम हो जाता है, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। अब टमाटर 200 रुपए किलो थे, अब टमाटर 40 रुपए 50 रुपए किलो है। पीछे से पहले नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से रेट बढ़ गया था, वही बात आ रही है। यानी कि तो बाकी जो लाजमात हैं, हरी मिर्च है, धनिया है, अदरक है, उसके रेट भी एकदम बढ़ जाते हैं। फिर एक किसी पीछे से जब चीज नहीं आएगी ना एक चीज, तो फिर उसके रेट बढ़ते हैं। जब बाजार में एक चीज थोड़ी होगी उसका रेट ज्यादा होगा, जब चीज ज्यादा हो जाएगी फिर उसका रेट नीचे आ जाता है। आज रेट है 30 रुपए, कल 50, उससे अगले दिन 60। ये आप समझते हैं कि शहरों के लिए मुश्किल है? नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। महंगाई की वजह से भी कुछ ज्यादा भी है और हर घर का बजट जो है ना वो 3 गुना ज्यादा हो गया है। मैं 300 रुपए में 350 रुपए में घर का एक सर्कल चला लेता था, आज मैं 1000-1200 रुपए में भी सर्कल नहीं चला रहा। जिस आदमी के 4, 5, 6 बच्चे हैं वो परेशान हो गया हुआ है। लीमू, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, सारा कुछ महंगा हुआ है। ये अवाम ही महंगी कर रही है खुद ब खुद अपनी मर्जी से। हाँ जी, नाम तब्दीली का रखा, तब्दीली आई है। एक लोग खुद महंगी कर देते हैं, इल्जाम हुकूमत पे लगा रहे हैं। एक मजाक बनाया हुआ है। टमाटर और अदरक और हरी मिर्च की कीमतें आपको क्या लगता है कि आम दिनों के मुताबिक हैं या ज्यादा है? ज्यादा है। आम दिन में भी यही रेट था, 500 रुपए किलो अदरक दे रहे हैं, ईद के दिन पे 600 रुपए हो गया था।
तो ये कौन सा रिलीज है, आप खुद ही देखें। सब्जी के रेट ज्यादा हुए में 11 भी है, कुछ लोग जो है वो कम भी दे रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये हुकूमत की कमजोरी है। हुकूमत अगर ये टीमें तश्कील दे, इनको चेकअप करे तो फिर सिस्टम सही हो सकता है, लेकिन सब गवर्नमेंट की कमजोरी। अच्छा, रेट लिस्ट के मुताबिक मिलती है कभी चीजें? बहुत कम। अच्छा, रेट लिस्ट पे तो टमाटर का रेट तकरीबन 30 से 40-50 रुपए किलो लिखा होता है, लेकिन हर रोज, लेकिन आज बड़े रेट बड़े 80 रुपए दे रहे हैं। हाँ जी, देखिए ना, ये भी एक ज्यादती है कि जिले इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट तो वाजे की जाती है, लेकिन उसके मुताबिक कभी कोई चीज मिली नहीं। रेट लिस्ट के ऊपर नहीं चलते ना, इनको चाहिए कि टीमें भेजे, इनको चेकअप करे, जो महंगे देते हैं उनको पकड़े, जुर्माने करे, फिर सिस्टम सही होगा। ऐसे तो नहीं, जुर्माने तो करते ही नहीं है, कोई भी नहीं करता। वो तो आज तक मेरे ख्याल से सब